today's topic is TCA cycle. We will just look at the overview of the TCA cycle. TCA cycle, it has other names. It is known as tricarboxylic acid cycle, TCA, because it has 3 carboxylic molecules. That's why it is known as tricarboxylic acid molecules. It is also known as citric acid cycle. Why it is known as citric acid cycle? Because the first substrate that enters into the cycle is citrate. So that's why, because of the citrate that enters from where the cycle starts, that's why it is known as citric acid cycle. So this cycle is also known as Krebs cycle. Krebs cycle because of the name of the scientist who first discovered this cycle, who just named and just put the reactions into a cycle form. Here is the Hans Krebs, who also got the Nobel Prize for discovering this pathway, this cycle. That's why this cycle is also known as Krebs cycle, because of the name of the scientist. Krebs cycle जब start होता है, it starts from the acetyl-CoA. The first molecule that enters into the cycle, that is the acetyl-CoA. Acetyl-CoA reacts with the oxaloacetate and it gives the citrate. That's why it is also known as citric acid cycle. तो Krebs cycle से पहले उसका जो है वो प्री Krebs cycle देख लेते हैं कि आपके पास जो है acetyl-CoA आता कहाँ से है, जहाँ से बेसिकली Krebs cycle जहाँ से स्टार्ट होता है. acetyl-CoA जैसे कि हम मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं, we are studying the Krebs cycle is from the metabolism topic. So Krebs cycle also comes from the metabolism of carbohydrates. जब carbohydrates की metabolism होती है तो उसमें से भी acetyl-CoA आता है. From the metabolism of proteins you also get the acetyl-CoA, and from the metabolism of lipids you also get the acetyl-CoA. So acetyl-CoA is not only specific for the carbohydrates metabolism, but it also is one of the intermediate product of the from the metabolism of carbohydrates, metabolism of proteins, and metabolism of lipids. Okay, so carbohydrates का metabolism जैसे कि हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं from the glycolysis. Glycolysis जो कि आपके पास carbohydrate का metabolism था, तो carbohydrate हमने कहा था कि जब वो उसकी metabolism होती है, जब more specifically जो catabolism का process होता है for the purpose of generating the energy, उसकी ब्रेक डाउन के सबसे पहला जो स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस होता है. ग्लाइकोलिसिस जिसमें कार्बोहाइड्रेट की जो है ब्रेक डाउन होती है इनटू पायरुविक एसिड के 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो डिवाइड होता है इनटू 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स. 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं, 2 पायरुवेट बनाते हैं. देन दिस पायरुवेट इज चेंज इनटू द acetyl-CoA. ये आपके पास इंटरमीडिएट स्टेप होता है. द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द acetyl-CoA. यहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है PDH, जिसको कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, एंड 1 NADH की प्रोडक्शन भी इस फेज पे होती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस फेज पे रिलीज होता है. देन दिस acetyl-CoA enters into the Krebs cycle. ये acetyl-CoA आपके पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से आ रहा है. इसी तरह से acetyl-CoA जो है वो लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म से भी आता है और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म से भी acetyl-CoA आता है. दैट इंटर्स इनटू द Krebs cycle. ठीक है, Krebs cycle में क्यों जाता है? तो ग्लाइकोलिसिस में जैसे हमने पढ़ा था कि आपके पास क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस से 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 से आपके पास क्या बनता है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है. देन 3 में से acetyl-CoA जो है 2 कार्बन मॉलिक्यूल, 2 कार्बन है. एक पायरुविक एसिड जब acetyl-CoA में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे एक कार्बन रिलीज होता है. 1 कार्बन इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, जिसको हम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. तो इसलिए 3 से आपके पास जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल आपके पास आ जाता है acetyl-CoA, and this acetyl-CoA enters into the Krebs cycle for the further oxidation. This Krebs cycle will only continue in the presence of oxygen. If the oxygen is available, then acetyl-CoA will enter into the Krebs cycle. In the absence of oxygen, जब oxygen नहीं होगा, then this pyruvic acid will not proceed into the Krebs cycle, बल्कि pyruvic acid जो है वो convert हो जाएगा lactic acid में, and there will be a less production of energy. While in case of abundant oxygen, जब बहुत सारा oxygen available होगा, then
एसिटाइल को ए जो है वो क्रेब साइकिल में एंटर हो जाएगा एंड विल गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट विल गिव अ लॉट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। ऐसे आपको बताया था एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में कि ग्लूकोज जो है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है कि उसके कार्बन स्केलेटन इसके क्या होते हैं कि जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो उसके बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो कार्बन जो है बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होता है, ठीक है, एंड देन इट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है इनके भी बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं एंड इसकी कन्वर्जन होती है वाटर में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर जो है उसकी क्या होती है कि उसको ब्रेक डाउन किया जाता है एंड देन एनर्जी एज अ रिजल्ट क्या होता है, लॉट ऑफ एनर्जीज ऑब्टेन। एंड ये एनर्जी क्यों चाहिए होती है, एनर्जी जो है डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए चाहिए होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस उसके होते हैं। और जो मोस्ट सिंपल एग्जांपल उसकी है कि मसल कंट्रैक्शन जब आप करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ द एनर्जी, तो वहाँ पे जो है एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई यू टेक द फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। तो उसके जो है अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, जो बाकी उसके एलिमेंट्स हैं उसकी एलिमिनेशन हो जाती है, ठीक है, एंड एज रिजल्ट यू गेट द एनर्जी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली द इट विल प्रोसीड टू द क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल जो है वो आपके पास इन दी सिर्फ एरोबिक कंडीशन में होता है, इन केस ऑफ एनारोबिक कंडीशन द क्रेब साइकिल डज नॉट वर्क। सो ग्लूकोज एक सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ठीक है, व्हेन इट पास थ्रू ग्लाइकोलिसिस देन इट गिव्स द टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपके पास क्या कहते हैं दो पायरुवेट देते हैं। देन ये आपको हमेशा बताती हूँ कि क्या होता है यहाँ से फिर दो आगे से चलते हैं, ठीक है। अभी हम क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तो क्रेब साइकिल जो है एक आपको दिखाया जाएगा, लेकिन इट मीन्स दैट कि अगर एक आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है देन आगे से इसके क्या होते हैं दो आपके पास जो है वो क्रेब साइकिल चल रहे होते हैं, ठीक है। हम एक का पढ़ेंगे लेकिन फिर हम उसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज एक साथ जो है उसके दो क्रेब साइकिल चल रहे होते हैं। सो ग्लूकोज इट विल पास थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस ग्लाइकोलिसिस एंड यू नो कि इसमें कितनी एनर्जी प्रोडक्शन होती है। देन पायरुवेट इसका एंड प्रोडक्ट होता है। देन पायरुवेट बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रेब साइकिल, मतलब क्रेब साइकिल शुरू होने से पहले यहाँ पे एक इंटरमीडिएट, दिस स्टेप इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं कि ग्लूकोज जो है उसकी कंप्लीटली ब्रेकडाउन होती है पायरुवेट में, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, दिस स्टेप इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। एंड देन ग्लाइकोलिसिस के बाद जो है आपके पास एक सेकंड स्टेप होता है, दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेप, जिसमें पायरुवेट की कन्वर्जन होती है एसिटाइल-CoA में। पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल-CoA। देन कैसे आपके पास जो है ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, इट इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट जिसमें आपके पास कितने हैं 1 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। सो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल-CoA। एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दैट्स द पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे भी डीहाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन होता है, एक हाइड्रोजन जो है वो आपके पास हाइड्रोजन रिमूव होता है, 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होते हैं, दैट्स कैप्चर्ड बाय द NADH, ठीक है, जो कि NAD जो है उसको लेता है, NAD इज कन्वर्टेड इनटू NADH। यहाँ पे भी आपके पास NADH की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे तो एक डीहाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन होता है, दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन भी होता है। मतलब आपके पास एक कार्बन 1 2 3 पायरुवेट कितना था 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, एक कार्बन जो है वो रिलीज हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3 कार्बन में से एक कार्बन जो है जब वो एलिमिनेट हो जाएगा तो आपके पास कितने कार्बन रह गए 2। तो एसिटाइल जो है बेसिकली क्या है, इट इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है अलोंग विद द एंजाइम को ए, ठीक है, उसका कोएंजाइम ए जो है उसके साथ अटैच होता है। सो एसिटाइल-CoA इट कंटेन्स द 2 कार्बन, सो दिस इज द एसिटाइल-CoA। इसी तरह से दो पायरुवेट हैं तो दो रिएक्शंस जो है आगे से चलेंगे। 3 कार्बन मॉलिक्यूल, एक कार्बन जो है वो रिलीज हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास 2 कार्बन मॉलिक्यूल रह जाएगा एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल मॉइटी एंड टुगेदर विद द कोएंजाइम ए, तो आपके पास एसिटाइल-CoA बन जाएगा, एसिटाइल-CoA की फॉर्मेशन होगी। तो इस स्टेज में भी क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है इनडायरेक्टली NADH, ठीक है। तो NADH जो है फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास या हम कहते हैं रिस्पायरेटरी चेन के पास वहां पे जाएगा और वहां पे ATP की प्रोडक्शन जो है उसमें इन्वॉल्व होगा। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप कि आपके पास जो है ये क्या है इंटरमीडिएट स्टेज है। देन दिस एसिटाइल-CoA enters into the Krebs cycle। अब Krebs cycle जो है यहाँ से आपके पास स्टार्ट होता है, राइट। इन केस ऑफ एरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट जो है वो आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अगर एरोबिक नहीं होगा एनारोबिक होगा तो पायरुवेट जो है वो उसकी लैक्टेट में कन्वर्जन हो जाएगी और आगे से जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। नाउ Krebs cycle जो है वेयर इट टेक्स प्लेस, जैसे ग्लाइकोलिसिस हमने कहा था कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है,
राइट, क्योंकि इसके एंजाइम्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हम सेल की बात करते हैं, सेल में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है बिकॉज उसके एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वाइल जो क्रेब्स साइकिल है, पायरुवेट जो है, पायरुवेट ये भी क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं हो सकता, इसलिए उसकी क्या होती है, एसिटाइल-CoA में कन्वर्जन होती है। ठीक है, सो पायरुवेट जो है उसकी एसिटाइल-CoA में फॉर्मेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होता है। तो क्रेब्स साइकिल जो है ये बेसिकली इट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। कुछ एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे रेस्पिरेटरी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है प्रेजेंट होता है। तो इसके जो यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, जो कैरियर्स होते हैं वो इजीली वहाँ पे क्या करते हैं, एटीपी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। Okay, so pyruvate, this is the intermediate process before the Krebs cycle, because Krebs cycle starts from the acetyl-CoA. Acetyl-CoA, as I told you, that is the 2 carbon molecule. ठीक है, तो 2 carbon molecule है जिसके साथ CoA enzyme जो है वो attach होता है। So carbohydrate metabolism में the pyruvic acid जो कि end product है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, ग्लूकोज का, ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के बाद आते हैं। 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेप जिसमें एक कार्बन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है एंड देन आपके पास 2 कार्बन मॉलिक्यूल रह जाते हैं। So this pyruvic acid is converted into the acetyl-CoA with the help of the enzyme pyruvate dehydrogenase complex, and one carbon is released in the form of carbon dioxide, and there is also a dehydrogenation reaction जिसमें एक NADH की प्रोडक्शन होती है, वन यहाँ से और दूसरा भी आपके पास होता है, तो एट ए टाइम 2 NADH की प्रोडक्शन होती है। Now acetyl-CoA it not only comes from the carbohydrate metabolism, but this acetyl-CoA also comes from the lipid metabolism and the protein metabolism. Now this acetyl-CoA 2 carbon molecules enter into the TCA cycle, Krebs cycle. ठीक है, तो this acetyl-CoA, why this reaction or why this is known as cycle, जो हमने पहले पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस जो था, ग्लाइकोलिसिस को हमने पाथवे का नाम दिया था, राइट, इसको हम साइकिल कह रहे हैं। व्हाई दिस क्रेब्स इज नोन एज साइकिल, इसको हम साइकिल क्यों कहते हैं, व्हाई दिस इज नोन एज साइकिल, बिकॉज दिस इज नोन एज साइकिल क्योंकि इसका जो फर्स्ट आपके पास जो फर्स्ट सबस्ट्रेट है और जो एंड में आपके पास जो प्रोडक्ट आता है दे आर दी सेम। इसमें जो चीज आपके पास सबसे पहले इंटर होती है रिएक्शन में, एंड में एंड by completing the whole reaction, by the whole series of reaction, end में भी आपके पास वही product आता है। ठीक है, so this acetyl-CoA will react with the 4 carbon molecule oxaloacetate, right? acetyl-CoA reacts with the oxaloacetate, ये आपके पास first reaction होता है। The first reaction is acetyl-CoA reacts with the oxaloacetate, then it forms the citric acid या citrate भी हम कहते हैं। ठीक है, citric acid की formation होगी तो 2 together with the 4 आपके पास क्या बनता है, 6 carbon molecule बनता है। This acetyl-CoA together with the oxaloacetate citric acid बनाता है, then it pass through a series of reaction। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, आखिर में फिर से आपके पास जो है oxaloacetate की फॉर्मेशन होती है। तो जो oxaloacetate की फॉर्मेशन होती है स्टार्ट में फर्स्ट रिएक्शन में भी इन्वॉल्व था एंड देन आखिर में आपके पास ये क्या होते हैं 10 रिएक्शंस भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। जब 10 रिएक्शन से ये पास होता है आखिर में आपके पास वापस से वही ऑक्सैलोएसीटेट आता है। तो 10 सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं। तो पहला भी आपके पास जो रिएक्शन में इन्वॉल्व था ऑक्सैलोएसीटेट था और एंड में वापस से रीजनरेशन होती है ऑक्सैलोएसीटेट की। ठीक है, तो ऑक्सैलोएसीटेट तो इसमें फर्स्ट में जो इन्वॉल्व था फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट जो है वो सेम होते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज क्रेब साइकिल। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। As according to the equation, one glucose molecule will give the 6 carbon dioxide, 6 water molecule and energy। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे रिलीज हो गया है फ्रॉम पायरुविक एसिड। 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, 2 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से जब पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक, उसमें हमने देखा कि कितनी एनर्जी 7 to 8 हमने कहा था कि एटीपी की प्रोडक्शन होती है, वो पूरा प्रोसेस देखा था, राइट। तो इसी तरह से अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे एक कार्बन रिलीज हो रहा है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हो गया, लेकिन 2 होते हैं, जैसे कि 2 रिएक्शंस होते हैं साइमल्टेनियसली, तो इसलिए आपके पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। इक्वेशन के मुताबिक कितने, 6 कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो
दो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एलिमिनेट होंगे, बाकी आपके पास दो कार्बन, मतलब उसकी ब्रेक डाउन होते होते कैटाबोलिज्म हो रही है ना, उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, इट हैज टू बी कम्प्लीटली कैटाबोलाइज्ड, इट हैज टू बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इट विल गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। 3 कार्बन हो गए, उसकी ब्रेक डाउन हुई, अब 3 जो है वहाँ पे 2 रह गए ना, अब 2 की भी क्या होती है, फर्दर इसकी ब्रेक डाउन होती है। तो ये दो कार्बन जो हैं ये भी इस रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया, 2 acetyl-CoA टुगेदर विद द oxaloacetate, 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इट अगेन गिव 6 कार्बन मॉलिक्यूल। सो 6, इसमें एक रिएक्शन में एक कार्बन जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा, देन इट विल बिकम 1 2 3 4 5 कार्बन मॉलिक्यूल रह जाएगा, देन इट विल फर्दर प्रोसीड इनटू द रिएक्शन, देन एक और कार्बन जो है वो रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। So it will become 1 2 3 4 and it will pass through a series of reactions, और आखिर में फिर से आपके पास क्या जाएगा, oxaloacetate आ जाएगा, it will be regenerated and it will be reused, and it will be ready for the reaction to other acetyl-CoA, ताकि और भी आपके पास एनर्जी के और भी प्रोसेस हो रहे हैं, ताकि फिर से acetyl-CoA आता है, उसके साथ रिएक्शन करता है, आगे इट कंटिन्यूस दी प्रोसेस को जो है कंटिन्यू रखता है। सो दो कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गए, दो क्रेब्स साइकिल होते हैं, तो इसलिए दो ये हो गए एंड दो ये हो गए, तो 2 and 2 4 and 2 6। सो 6 कार्बन यहाँ पे आपके पास कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है, जो ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 2 2 and 2, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड आर एलिमिनेटेड, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके अलावा क्रेब्स साइकिल में देयर इज अ जनरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, कुछ जो है डायरेक्टली एटीपी प्रोडक्शन भी होती है, कुछ इनडायरेक्टली भी होती है। एक NAD जो है यहाँ पे जब डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन होता है तो साथ में डिहाइड्रोजनेशन का रिएक्शन भी होता है। NAD इट विल एक्सेप्ट द NAD एंड NAD विल बी रिड्यूस्ड इनटू द NADH। एक और NAD जो है वो भी आपके पास क्या होता है, NADH में रिड्यूस हो जाता है, एंड देयर इज अनदर NAD जो कि NADH में रिड्यूस हो जाता है। सो यहाँ पे जो है एक क्रेब्स साइकिल में 1 2 and 3, ठीक है, एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH की प्रोडक्शन होती है, या यू कैन से 3 NAD जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं NADH में। मतलब यहाँ पे आपके पास ये जो रिएक्शन हो रहा होता है इसमें ऑक्सीडेशन होती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में क्या होगा कि NAD विल गेट रिड्यूस्ड। सो इन क्रेब्स साइकिल 3 NAD are reduced to the NADH, 3 NADH की प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा ये 3 NADH जो है ये दो क्रेब्स साइकिल होंगे, एट ए टाइम दो क्रेब्स साइकिल होंगे, तो 3 and 3 कितने हुए, 6 NADH होंगे, राइट। तो एक NADH जो है कितने ATP की प्रोडक्शन करता है, ये NADH जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, ATP सिंथेसाइजिंग मशीनरी के पास, वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, वहाँ पे आपके पास जो है ATP रिक्वायर जो है की सिंथेसिस होगी। उसके अलावा जो है एज अ रिजल्ट वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे, ठीक है। वाटर यहाँ पे आपको नहीं नजर आ रहा, मतलब यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन नहीं हुई, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे रिलीज होते हैं, वो आपके पास वो भी 6 होंगे, लेकिन दैट विल बी इन द, वो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उसको पढ़ेंगे। सो NAD it gives the 2.5 ATP, right? So 2.5 or you can say 3, sometimes कुछ बुक्स में 3 भी लिखा हुआ है, 3 ATP भी लिखा हुआ है। So NAD is 2.5 and 2.5 कितने हो गए, 5 5 and 2.5 7.5, right? So 7.5 and then जो नेक्स्ट एक और क्रेब साइकिल है 7.5 and 7.5 इट गिव्स दी 15 ATP, ठीक है। हमने जस्ट अभी सिर्फ NAD की कैलकुलेशन की है, अगर हम सिर्फ एक की पहले हम चलो सिर्फ पहले एक क्रेब साइकिल की कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक NADH जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, तो कितनी ATP की प्रोडक्शन करता है, 2.5 की। तो एक क्रेब साइकिल में कितने NADH बन रहे हैं, 1 2 and 3 NADH की डिफरेंट जो है डिफरेंट रिएक्शंस में उसकी जो है सिंथेसिस हो रही है। उसके अलावा एक FADH की प्रोडक्शन होती है, FAD विल बी रिड्यूस टू द FADH2, राइट। तो FADH2 जो है ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएगा, वहाँ पे ATP की सिंथेसिस होगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगी, और वहाँ पे 1.5 ATP की सिंथेसिस करेंगे, राइट। सो इसकी जब हमने कैलकुलेशन की थी तो 7.5 and 1.5 कितना हुआ, इट गिव्स दी 9 ATP प्रोडक्शन हो गई, राइट। और एक जो है आपके पास क्या हो रही है, डायरेक्ट ATP की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे
बेसिकली जीडीपी आता है. दिस इज द डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. डायरेक्ट लेवल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है जहाँ पे जीडीपी आता है, वो कन्वर्ट होता है जीटीपी में. देन जीटीपी अगेन जो है अपना फॉस्फेट एटीपी को देता है, एंड देन एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, राइट. तो 1.5 एंड देन 7.5, तो आपके पास कितने हो गए 9 एटीपी, और एक आपके पास हो गया 10 एटीपी. तो एक क्रेब साइकिल से आपके पास जो है वो क्या होती है 10 एटीपी की प्रोडक्शन होती है. तो इसलिए 2 क्रेब साइकिल होते हैं, तो 10 एंड 10 आपके पास कितने हो जाएंगे, इट गिव्स यू द यस 20. ठीक है, आपके पास जो है वो एक क्रेब साइकिल से कितने आएंगे 20 एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो आपके पास होगी. कुछ बुक्स में जो है NADH का 3 एटीपी बताया हुआ है, और FADH का जो है वो 2 एटीपी प्रोडक्शन बताया हुआ है. तो उस लिहाज से भी आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी कि 2.5 और 1.5 एटीपी प्रोडक्शन इसकी कैसे होती है. So for Krebs cycle, you need the reactants, you need the pyruvic acid, that it will be converted into acetyl-CoA, and then acetyl-CoA enters into the Krebs cycle. And then you require the ADP, ADP जो कि कन्वर्ट होता है ATP में. GDP भी चाहिए होता है यहाँ पे, ठीक है. बेसिकली जो स्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन होती है उसमें डायरेक्ट GDP इन्वॉल्व होता है, GTP में कन्वर्ट होता है, एंड देन GTP जो है फॉस्फोरेट करता है ADP को, एंड देन ADP कन्वर्ट इनटू NADP. You require the NAD and FAD, ठीक है. NAD is converted into NADH and FAD is converted into FADH2. As a result, क्रेब साइकिल में 2 एटीपी की प्रोडक्शन होती है, मतलब डायरेक्ट लेवल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जो होती है, ठीक है, डायरेक्ट एटीपी प्रोडक्शन होती है. जो इनडायरेक्टली NAD और FAD इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाते हैं, वहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं. और कार्बन जो है, कार्बन स्केलेटन की एलिमिनेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. So today we studied about the overview of the Krebs cycle. The Krebs cycle basically है क्या, Krebs cycle हमने कहा कि उसका जो start होता है acetyl-CoA से. The acetyl-CoA not only comes from the carbohydrate metabolism, बल्कि it also comes from the metabolism of, it's a common pathway, हम इसको कहते हैं common central point है. Krebs cycle is a common central point for the carbohydrate metabolism, for the protein metabolism and lipids metabolism. So acetyl-CoA enters into the Krebs cycle. तो acetyl-CoA जो है वो आपके पास क्या होता है, acetyl-CoA is a true carbon molecule. तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, it reacts with the oxaloacetate, and then आपके पास क्या बनाता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है. then 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होता है आपके पास 5 में, एक कार्बन एलिमिनेट हो जाता है, देन 5 से फिर से 4 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है, और एक कार्बन रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो एज रिजल्ट क्या होता है कि 2 कार्बन जो है वो रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. उसके अलावा तो 2 acetyl-CoA आते हैं, ठीक है. इट रिक्वायर्स 2 acetyl-CoA, एंड रिजल्ट क्या होता है कि 4 कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन होती है. मतलब 2 क्रेब साइकिल की यहाँ पे कलेक्टिवली बात हुई. एक क्रेब साइकिल से 2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे क्रेब साइकिल से भी 2 कार्बन डाइऑक्साइड. तो इनपुट क्या होता है कि 2 acetyl-CoA आते हैं, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि 4 कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन होती है, या 4 जो उसके कार्बन स्केलेटन 2 acetyl-CoA के ना 2 and 2 4, मतलब एक acetyl-CoA तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, और दूसरे acetyl-CoA से भी 2 आएंगे. 2 and 2 4 कार्बन जो है उसकी एलिमिनेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरह से जो है एक क्रेब साइकिल से के लिए 3 NAD, दूसरे के लिए भी 3 NAD, देन 6 NAD. तो आपके पास कितनी 6 NADH की प्रोडक्शन करेंगे. एक क्रेब साइकिल से भी 3 NADH, और दूसरे क्रेब साइकिल से भी 3 NADH, 3 फ्रॉम ईच क्रेब साइकिल. तो 6 NADH, एंड इट विल गो टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वहां पे ATP की प्रोडक्शन करेंगे. देन 2 FAD, मतलब 1 FAD फॉर ईच साइकिल, फॉर ईच, क्योंकि 2 क्रेब साइकिल चल रहे होते हैं, ठीक है. सो 1 FAD एंड देन अदर FAD, राइट. तो 2 FADH की प्रोडक्शन, 2 FADH2 की प्रोडक्शन होती है फ्रॉम ईच क्रेब साइकिल. इन केस ऑफ ये जो 2 बात हो रही है, ये इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है, ठीक है. और दूसरे मेटाबॉलिज्म में डिपेंड करता है कि कितने acetyl-CoA जो है वो इंटर होते हैं साइकिल में. फॉर अदर जो लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, उस केस में डिपेंड करता है कि कितने acetyl-CoA साइकिल में इंटर होते हैं. तो उस लिहाज से फिर आपके पास जो है उसकी प्रोडक्शन होगी. लेकिन इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं, तो उस केस में आपके पास जो है ये 2 acetyl-CoA जो है वो इंटर होते हैं, और इस तरह से 2 क्रेब साइकिल चल रहे होते हैं. तो इसलिए यहाँ पे आपको कलेक्टिवली 2 क्रेब साइकिल का बताया हुआ है. देन 2 ADP, मतलब 1 ADP फॉर ईच साइकिल. तो जैसे आपको बताया कि
जीडीपी पहले जीटीपी में कन्वर्ट होता है, देन जीटीपी अपना फॉस्फेट इसको देगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी, राइट, मतलब डायरेक्ट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी यहाँ पे होती है. So this is the overall for the overview of the Krebs cycle. In the next lecture we will study about the reactions of Krebs cycle. इसके जो जितने भी reactions हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी significance को जो है Krebs cycle की significance को हम डिटेल में पढ़ेंगे.